Bismillahirrahmanirrahim. Students of DPS, Assalamu alaikum. I am Iram Asghar, SS Physics. Today we are going to study the effects of electric current. Example number 13.1 and short question number 13.1. Let's begin by studying the electric current. It can be defined as the rate of flow of electrons through any cross-sectional area of a conductor in unit time. Its equation is written as I is equal to delta Q by delta T, where delta Q is the amount of charge passing through any cross-sectional area of a conductor in time interval delta T. Its unit is coulomb per second, also called ampere. Now we shall try to understand how current develops across the ends of a conductor. For this purpose, we connect a source of current across the ends of a metallic conductor, and due to this source of current, an electric field is set up at every point of the metallic conductor. This electric field applies electric force on all the electrons. Due to this electric force, they start moving inside the conductor. During their passage, they collide with the atoms of the conductor and also with the other electrons. Due to these collisions, the electrons lose some of their kinetic energy and transfer that energy to the atoms of the conductor. The atoms, upon getting this energy, also start vibrating vigorously. As a result, collide with the other neighboring atoms. In this way, an electric current is set up across the ends of a conductor. These electrons, upon striking with the atoms of the conductor, lose their energy, and in this way, upon each collision, they lose some part of their kinetic energy. These electrons even bounce back upon striking with other electrons or atoms, but an electric field of battery constantly pushes them against this electric field. Generally, the electrons are moving at a very high speed, but these repeated collisions slow them down. That's why they constantly lose energy due to friction between electrons and atoms. This energy appears as heat energy. Now, electrical energy of electrons is constantly converting into heat energy, thus they slow down. These electrons now drift with a velocity of the order of millimeters per second, and the lost heat energy is used in raising the temperature of the conductor. Through the motion of electrons across the conductor, the energy of electrons constantly converts into other forms. Scientists have designed various sort of circuits which can convert electrical energy into other forms of energy, like heat energy, light energy, mechanical energy, and many more. Now we shall study the effects of electric current. Whenever current flows through a conductor, its presence can be detected through its different external effects. Some famous external effects of electric current are heating effect, magnetic effect, and chemical effect. We shall be studying them in detail. Whenever current flows through a conductor, it produces heat energy due to collision of electrons with the atoms of the conductor. In this way, constantly heat energy is generated. This production of heat energy is termed as heating effect of current. To understand the production of heat energy due to passage of current, let's take the example of a bulb, which is attached with a battery by means of a switch as shown in the figure. When we close the switch of this circuit, the current starts flowing through the filament of the bulb. The electrons strike the atoms of the filament of the bulb, and in this way, through continuous collisions, the filament is heated up and starts glowing. Now we have converted electrical energy into light energy. This is the working of our filament bulb, but here
Due to continuous collisions of electrons, some heat energy is also generated, which is not in our desired form. We wanted the entire electrical energy to convert into light energy, but it didn't happen due to heating effect of current. Let us consider another example of heating effect of current. For this purpose, we take a nichrome coil having resistance R and we connect it with the battery by means of a switch. As we close the switch, electrons start drifting across the circuit and strike with the atoms of the nichrome coil. They transfer their electrical energy to the atoms of the coil and they also start vibrating vigorously. Through these collisions, some of the energy is converted into heat energy. If we pass the current for a longer time period, the coil would get more amount of heat energy. Its temperature would become higher. अगर हम बड़ी बैटरी के जरिए से larger amount of current को सर्किट में से फ्लो करवाएं, तो भी amount of heat generated through the coil में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह से ज़्यादा देर के लिए अगर करंट फ्लो करेगा, तो भी amount of generated heat में इजाफा होता चला जाएगा। प्रीवियस क्लास में आप जाउल्स लॉ पढ़कर आए हैं। इसको जूल भी प्रोनाउंस किया जाता है। जाउल्स लॉ की स्टेटमेंट है, The amount of heat generated in a wire due to the flow of charges is the product of square of current I, resistance R, and time duration T as shown by the following equation. It means if we increase the amount of current, the resistance R or the time duration T, the amount of heat generated would rise. अब हम तो बल्ब के ज़रिए से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते थे, मगर हीट एनर्जी भी बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रिक फैन के ज़रिए से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहें मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, तो भी हीट एनर्जी एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है ये हमारी डिज़ायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। आज साइंटिस्ट ने ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस डिज़ाइन की हैं जिनमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को इस्तेमाल करके इंसानियत फ़ायदा उठा रही है। इनमें से बहुत सारी हमारी किचन अप्लायंसेस हैं, जैसे टोस्टर। टोस्टर के ज़रिए से हम अपने स्लाइसेस को गर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक केटल, इसके ज़रिए से हम चाय का पानी गर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव, जिसके ज़रिए से हम फूड को कुक कर सकते हैं। अवन्स, जिनके ज़रिए से वंस अगेन फूड को कुक भी किया जा सकता है, गर्म भी किया जा सकता है। सैंडविच मेकर, जिसके ज़रिए से आप सैंडविचेस प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड देयर आर मैनी मोर। इलेक्ट्रिक आयरन के ज़रिए से हम क्लोथ्स को प्रेस करते हैं। वाटर हीटर्स के ज़रिए से हम सर्दियों में गर्म पानी हासिल करते हैं या फिर कपड़े और बर्तन धोने के लिए गर्म पानी हासिल करते हैं। इसी तरह से हमारे घर में फ्यूज़ मौजूद हैं जो ऑटोमेटिकली एक्सेसिव करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूटिलाइज करते हैं। सर्दियों के मौसम में कमरों और घरों को वार्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिक हीटर्स को इस्तेमाल करते हैं। लातादाद अप्लायंसेस हैं जिनमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मुतालिक एक इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते हैं। We know that the battery or a cell is the source of electrical energy. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets electron in motion to flow the current through an resistor or a system of resistors connected to the battery. In order to maintain the current, the source has to keep expanding its energy. However, a part of this source energy in maintaining the current may be consumed into useful works like in rotating the blades of an electric fan. The rest of the source energy may be expanded in heat to raise the temperature of the gadget. We often observe this in our daily lives. For example, an electric fan becomes warm if used continuously for a long time. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, that is, a configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as the heating effect of an electric current. Now let us study the magnetic effect of current. In 1819, Hans Christian Ørsted observed that whenever current passes through a wire or a conductor, it develops a magnetic field in the surrounding region, which can be detected through any magnetic instrument, like compass needle. This is called
magnetic effect of current. Here we will observe the magnetic field produced by a current carrying wire. इस मकसद के लिए हम एक बैटरी को एक स्विच के ज़रिए से एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे, इस बैटरी के ज़रिए से करंट फ्लो करेगा। ये फ्लोइंग करंट नेबरिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए हम एक कंपस नीडल नाम के इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं। ये कंपस नीडल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन शो करती है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक कंपस का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। इससे साबित होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अपनी जनरेशन के लिए करंट पर डिपेंड कर रही है और ना सिर्फ जनरेशन बल्कि डायरेक्शन भी करंट ही डिसाइड कर रहा है। ये करंट कैरिंग वायर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी टेम्परेरी मैग्नेट में तब्दील हो चुकी है। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट और सेकंड डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट। अगर हम ज़्यादा मिकदार में करंट को इस वायर में से पास करेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। इसी तरह से अगर करंट कैरिंग वायर से हम दूर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में कमी वाक़ई हो जाएगी और इसके करीब आने पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट को अब हम एक वीडियो के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। He found out that if you keep a compass near a current-carrying wire, then the compass needle deflects to some extent. Yes, understand this well. When current passes through this wire and we keep this compass near that wire, the needle will deflect. This will not work if the current in the wire is feeble. However, in that case, if we remove a part of the insulated coating and keep the compass near that region, you will see the deflection. Or in other words, the wire becomes a temporary magnet. This is the reason that the compass needle deflects when brought near this wire. Magnetic field produced by a straight current carrying wire is shown in the figure. You can see that the magnetic field lines are in circular shape around the straight current carrying conductor. Likewise, if we take a solenoid, that is a long tightly wound cylindrical coil, and pass electric current through it, then by the figure we can see that magnetic field would develop in the surrounding region, and this magnetic field resembles the magnetic field produced by a simple bar magnet. करंट के फ्लो को स्टॉप करते ही ये दोनों कंडक्टर्स आम कंडक्टर्स बन जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के तौर पर बिहेव नहीं करेंगे। यानी कि अब इनके करीब अगर कंपस नीडल को लाया जाएगा तो वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट डिज़ाइन करने के लिए हम एक कॉपर की तार लेंगे और उसको एक आयरन नेल पर लपेट देंगे। इस कॉपर की तार के दोनों किनारों को अब हम बैटरी के साथ अटैच कर देंगे। इसमें से करंट पास होना शुरू हो जाएगा और करंट के पास होते ही ये आयरन नेल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इसकी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करने के लिए हम एक मैग्नेटिक कंपस या आयरन फिलिंग्स इसके करीब ला सकते हैं। आयरन फिलिंग्स भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और कंपस नीडल भी इसके करीब आने पर डिफ्लेक्शन शो करेगी। किसी भी वायर में या कंडक्टर में करंट मौजूद है या नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए और उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं हमारे गैल्वेनोमीटर्स और एमीटर्स, जो कि करंट को डिटेक्ट या फिर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बेल्स, सर्किट ब्रेकर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोर लॉक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, टेलीफोन ईयरपीस, क्रेन्स इन स्टील वर्क्स एंड स्क्रैप यार्ड्स, इलेक्ट्रिक मीटर्स और तमाम अप्लायंसेस जिनमें मोटर्स इस्तेमाल हो रही हैं। हर किस्म की मोटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ज़रिए से काम करती है। इस फिगर में आपको एक क्रेन दिखाई गई है जिसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ज़रिए से एक गाड़ी को लिफ्ट कर रखा है। नीचे फिगर में आपको एक मोटर दिखाई गई है। मोटर्स भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड हैं, बेशक ये ड्रिल के अंदर इस्तेमाल हो रही हूँ या फिर ये ग्राइंडर के अंदर इस्तेमाल हो रही हूँ, जूसर या ब्लेंडर के लिए इस्तेमाल हो रही हूँ। फिगर्स में आपको एमीटर और गैल्वेनोमीटर दिखाए गए हैं। ये तमाम भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ज़रिए से करंट को डिटेक्ट या मेजर करते हैं।
इसी तरह से इलेक्ट्रिक फैन, इसके अंदर भी मोटर मौजूद है, ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ज़रिए असर काम करता है। एक इलेक्ट्रिक बेल, उसका गॉन्ग जो है उसके साथ जब हैमर स्ट्राइक करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बायस तो आपको घंटी सुनाई देती है। लातादाद एप्लीकेशंस हमारे पास मौजूद हैं जिसके ज़रिए से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में ढालते हैं। अब हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे। जब भी हम किसी कंडक्टिंग लिक्विड जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन सामने आते हैं। इसको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी करने के लिए हम एक वोल्टामीटर लेते हैं। वोल्टामीटर एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करते हैं। जब भी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट को पास किया जाएगा तो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, जिनकी स्टडी को हमने इलेक्ट्रोलिसिस कहा है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। इसी तरह से करंट को कंडक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोड्स का सहारा लेते हैं। ये वो कंडक्टर्स हैं जिन्हें वायर, रॉड या किसी भी शेप में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया जाता है। एनोड करंट को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है और कैथोड इसको इलेक्ट्रोलाइट से बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच करते हैं और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच किया जाता है। इस फिगर में हमें एक वोल्टामीटर दिखाया गया है। वोल्टामीटर वो कंटेनर है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर फिगर के अंदर ब्लू कलर से दिखाया गया है। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड। यहाँ पर ये कॉपर के बने हुए हैं। इन्हें एक बैटरी के साथ अटैच किया गया है ताकि इलेक्ट्रोलाइट में से करंट को पास किया जा सके और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यानी कि केमिकल चेंजेस का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। एक ऐसा वोल्टामीटर जिसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल हो रहे हों और कॉपर के ही किसी सॉल्ट के सोल्यूशन को हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर सिलेक्ट किया हो, ऐसा वोल्टामीटर कॉपर वोल्टामीटर कहलाता है। अब हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को डिटेल में पढ़ते हैं। For this purpose, we take a voltmeter with 2 electrodes made of copper. We will study the electrolysis of copper sulfate. हम कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करेंगे। पानी में इसको डालने पर ये डिसोसिएट हो जाएगा into copper and sulfate ions. अब हम इलेक्ट्रोड्स यानी कि कॉपर की प्लेट्स को बैटरी के साथ अटैच कर देंगे और करंट को यहाँ से फ्लो करवाएंगे। करंट के फ्लो के बायस एनोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और कैथोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैथोड के नेगेटिवली चार्ज होते ही कॉपर आयंस अट्रैक्शन के बायस इसकी तरफ चले जाएंगे और वहाँ पे मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके कॉपर के एटम्स में तब्दील हो जाएंगे। ये कॉपर एटम्स कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। मीनवाइल सल्फेट आयंस वुड मूव टुवर्ड्स द एनोड ड्यू टू अट्रैक्शन। मगर इस दौरान एनोड पर मौजूद कॉपर एटम्स वाटर में डिसॉल्व होकर कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आयंस सल्फेट आयंस के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इस तरह से सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट की मिकदार बरकरार रहती है। कॉपर सल्फेट की डेंसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी, मगर एनोड पर से कॉपर की मिकदार घटती चली जाएगी और कैथोड पर इक्वल प्रोपोर्शन में ये क्वांटिटी डिपॉजिट होती जाएगी। इस तरह से करंट के फ्लो के बायस मुस्तकिल तौर पे एनोड कॉपर को लूज करेगा और कैथोड कॉपर को गेन करेगा और उसके ऊपर कॉपर का एक लेयर डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहा जाता है। Electroplating is a process in which a thin layer of expensive material is coated on a cheap metal like iron or some other material. The expensive material can be gold, silver, and the cheap metal can be iron, copper, etc. अब हम different applications of chemical effect of current का जिक्र करेंगे, जिनमें से एक हमने पढ़ी है electroplating। हमारी अक्सर किचन अप्लायंसेस निकल प्लेटेड होती हैं। इसी तरह से व्हीकल के कुछ हिस्से क्रोमियम प्लेटेड होते हैं ताकि उन्हें रस्ट फॉर्मेशन से बचाया जा सके। इसी तरह से अगर हमें प्योर कॉपर ऑब्टेन करना है
तो उसके लिए भी हम इलेक्ट्रोलिसिस का सहारा ले सकते हैं। कॉपर को रिफाइन करने के लिए हम कॉपर का कोई सा भी सॉल्ट से इलेक्ट्रोलिसिस से गुजारेंगे और इम्प्योर कॉपर मौजूद होने के बावजूद हम इलेक्ट्रिक केबल्स के लिए प्योर कॉपर ऑब्टेन करेंगे। ये प्योर कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम देख चुके हैं। इसी तरह से सोडियम को ऑब्टेन करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं। एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्यूटी इंडस्ट्री में भी हेयर रिमूवल के लिए इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 13.1। 1.0 into 10 raised to the power 7 electrons pass through a conductor in 1 microsecond. Find the current in ampere flowing through the conductor. Electronic charge is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.0 into 10 raised to the power 7 है, जो कि एक कंडक्टर में से गुजरते हैं। हर इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम है। टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट 1 माइक्रोसेकेंड यानी कि 1 into 10 raised to the power minus 6 सेकेंड्स है और हमें यहाँ पे गुजरने वाले अमाउंट ऑफ करंट को कैलकुलेट करना है। द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट इज I is equal to delta Q by delta T. Now we will put values in this formula as I is equal to delta Q by delta T, where delta Q is the total charge flowing through the conductor. To calculate the total charge present in the wire, we will multiply the number of electrons by the charge on each electron. Thus, the equation becomes I is equal to NE by delta T. Now we will put values in this equation to get our answer. N is equal to 1 into 10 raised by 7. E is 1.6 into 10 raised by minus 19 coulomb, where delta T is 1 into 10 raised by minus 6 seconds. After calculation, our result would be 1.6 into 10 raised to the power 6 amperes, or 1.6 microamperes current would be flowing through the wire. Now let's proceed further towards short question number 13.1. The statement is, a potential difference is applied across the ends of a copper wire. What is the effect on the drift velocity of the free electrons by increasing the potential difference and by decreasing the length and temperature of the wire? क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक कॉपर वायर के किनारों के साथ एक बैटरी को अटैच किया जाए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या असर होगा? लेंथ और टेम्परेचर को घटाने या कम करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से मुतासिर होगी? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो स्मॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में गेन करता है। जब भी बैटरी को किसी वायर के साथ अटैच किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस वेलोसिटी को Vd के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह मिलीमीटर्स पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। वी नो दैट I is equal to V by R by Ohm's law. पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने के नतीजे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इजाफा होगा, क्योंकि हम जानते हैं V is equal to ED। पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन के ज़रिए से हमें मालूम है कि अगर हम अप्लाइड पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथन हो जाएगी, जिसके नतीजे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से ड्रिफ्ट करेंगे अक्रॉस द सर्किट। अब लेंथ को कम करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे मुतासिर होगी, उसके लिए फिर से इक्वेशंस देखते हैं। We know I is equal to V by R and R is equal to rho L by A, where L is the length of the conductor, A is the cross-sectional area of the conductor, and R is the resistance of the conductor. By decreasing the length, we can see that resistance would also decrease. अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो नतीजे के तौर पे करंट में इजाफा हो जाएगा। करंट बढ़ने का मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अमाउंट ऑफ करंट पर डिपेंडेंट है। करंट ज़्यादा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा, करंट कम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम।
इसी तरह से टेम्परेचर को कम करने पर भी रेजिस्टेंस चेंज होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ इस इक्वेशन के ज़रिए। टेम्परेचर में कमी रेजिस्टेंस में कमी का बायस बनेगी। इस तरह से करंट में इजाफा हो जाएगा एज इंडिकेटेड बाय द इक्वेशन। लेट अस रिव्यू। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मुतालिक पढ़ा। हमने पढ़ा कि करंट जब भी किसी कंडक्टर में से गुजरेगा तो मुख्तलिफ किस्म के एक्सटर्नल इफेक्ट्स शो करेगा, जैसे हीटिंग इफेक्ट। करंट कहीं से भी गुजरने पर हीट प्रोड्यूस करेगा। ये हीट collision of electrons with the atoms of the lattice of the conductor की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ये हीट इलेक्ट्रॉन्स के क्रिस्टल लैटिस ऑफ द कंडक्टर के साथ टकराने के बायस पैदा होती है। इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ अप्लायंसेस में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े इस्त्री करने के लिए हीटर, कमरों को या ऑफिस को गर्म करने के लिए टोस्टर, स्लाइसेस को गर्म करने के लिए सैंडविच मेकर, सैंडविचेस बनाने के लिए, और भी लातादाद जगहों पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को हम बैटरीज को चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, प्योरीफाइड कॉपर को ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। करंट के किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरने के बायस केमिकल चेंजेस का प्रोड्यूस हो जाना केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है। करंट किसी भी सर्किट में से गुजरता है तो सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। इस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लातादाद अप्लायंसेस में इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें इंडस्ट्री में, घर पे दोनों जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके घर की बेल से लेके आपके टेलीविज़न सेट्स, आपके रेडियोज़, आपके टेलीफोन्स, तमाम जगहों पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस्तेमाल हो रहा है। जितनी भी मोटर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट हमारी ज़िंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा है, जो मुख्तलिफ अप्लायंसेस के ज़रिए से हमारी लाइफ्स को कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज़ योर असेसमेंट फॉर टुडेज़ लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 2, who discovered the magnetic effect of electric current? Question number 3, name few applications of magnetic effect of current. Question number 4, define electroplating. Question number 5, what is electrolysis? Question number 6, write the names of some devices utilizing the heating effect of current. Question number 7, what is magnetic effect of current? All these questions are very easy and simple. Try to answer them. All the best.